Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, one thing is very important to know. एक बात जानना तो सच में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। What God has done to us through the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया है ये जानना जरूरी है। God loved us so much. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा You should not perish. कि आप नाश ना हो You should have life eternal. और आप अनंत जीवन You पाएं should live forever with God. और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए So जिए। He gave Jesus Christ, और इसलिए उसने यीशु मसीह को दे दिया, His own Son Jesus Christ. अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। We say only begotten Son Jesus Christ. हम कहते हैं इकलौता पुत्र यीशु मसीह, The only begotten Son Jesus Christ. वो इकलौता प्रभु यीशु मसीह, This Jesus Christ ये यीशु मसीह, is not only as called the Son of God, ये केवल परमेश्वर का पुत्र ही नहीं कहलाया, He is God Himself. वो तो स्वयं परमेश्वर है। Since He came here as a man, वो मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए, that's why He is called the Son of God. इसलिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। He came as a man. वो मनुष्य के रूप में आए, He appeared as a man वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, in the likeness of man. मनुष्य की समानता में He आए, found in the fashion as a man. मनुष्य के रूप में बनाए गए, 100% He is God Himself. लेकिन वो स्वयं 100% परमेश्वर थे। Same God. वही He परमेश्वर came here. वो यहाँ पर आए, The purpose, और उद्देश्य क्या था? why He manifested वो क्यों प्रकट हुए? here as a man, मनुष्य के रूप में। the Bible tells us. बाइबल हमें बताती है, Hebrew chapter 2:14 says, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 इस तरह से कहता है। please understand and listen very carefully and take it. आप इसे बहुत ही गौर से सुनिए और इस वचन को ले लीजिए Know it. और इसे जान लीजिए। You'll hear the word. In as much then as the children have partaken of flesh and blood, In as much as the children have taken part as flesh and blood, he himself likewise He Himself likewise shared in the same, shared in the same. that through death Through death, he might destroy him He might destroy him who had the power of death, who had the power of death, that is the devil, that is the devil, and release those who or release those through fear of death through fear of death were all their lifetime all their lifetime subject to bondage. bondage। My beloved, ये वचन कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ये वचन इस तरह से कहता है कि अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। beloved, प्यारे लोगों, as we are children of God, are flesh and blood. जैसे हम लोग यानी हम जो संतान है लहू और मांस के So भागी हैं, God also has become flesh and blood. और इसलिए परमेश्वर भी लहू और मांस हो गए। He came to this earth. वो इस पृथ्वी पर आए, He is Jesus Christ. वो तो यीशु मसीह हैं। What for He has come? वो किस लिए आए? The Bible tells. बाइबल कहती है, Through death on the cross, क्रूस पर मृत्यु के द्वारा, that He might destroy the power of death, that is the devil. कि वो मृत्यु की सामर्थ को नाश करे जो कि शैतान है, Who had the power of death. जिसके पास मृत्यु की सामर्थ थी, यानी शैतान को निकम्मा कर दे। That is the devil. ये तो शैतान था, He came और प्रभु इसलिए आए to destroy him कि उसे नाश कर दे, उसे निकम्मा कर दे। through the death on the cross. क्रूस पर मृत्यु के द्वारा, On the cross, क्रूस पर Jesus said, यीशु ने कहा, "It is finished." ये पूरा हुआ। That means इसका मतलब He है has already destroyed this devil, the power of death. उसने इस शैतान को यानी मृत्यु की सामर्थ को हरा दिया था, उसने पूरी तरह उसे निकम्मा किया। Then He released all the people, those who are in their lifetime subject to fear of death. और उसने उन सभी लोगों को छुड़ाया जो कि जीवन काल भर मृत्यु के डर में थे। Adam, आदम
The first जो man, पहला मनुष्य था, the death came, उस पर मृत्यु आई and he was afraid. और वो तो डर गया The था। fear of death came. मृत्यु का डर आया। God said you will die. परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओगे। That fear of death came upon him. मृत्यु का डर उस पर आ गया After that, all the generation, और उसके बाद सारी पीढ़ी, every single हर person एक मनुष्य, has the same fear of death. उसमें मृत्यु का यही डर था। But now, लेकिन अब this word says, ये वचन कहता He है has released all of us from the fear of death कि हम सबको मृत्यु के डर से छुड़ाए, because क्योंकि He destroyed him who had the power of death. उसने उसे नाश किया जिसके पास मृत्यु की सामर्थ थी, अर्थात शैतान को। That is the devil. वो तो शैतान था। That's why he said it is finished. इसलिए उसने कहा कि पूरा हुआ। John chapter 17:4. यूहन्ना 17:4 में That's what he spoke to Father. उसने पिता से यही कहा, Father, हे पिता, the work that you have given me to do, वो जो काम तूने मुझे दिया है I have finished. मैंने पूरा किया है। I have finished. मैंने पूरा किया I है। have glorified you on the earth. मैंने तुझे पृथ्वी पर महिमा दी Are है। you able to believe this? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? Do you know it? क्या आप इसे जानते हैं? This is done. ये काम पूरा हो चुका है। This is done. ये हो चुका है। He already destroyed him. उसने उसे नाश कर दिया है। He finished him. उसने उसे पूरा किया है। Fear not. डरिए नहीं। Then another word says, फिर एक और वचन कहता है, 1 John chapter 3 verse 8. पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8। It says like that. ये इस तरह से कहता है, He who sins is of the devil, The one who sins, he who sins is of the devil. for the devil has sinned from the beginning. Devil has sinned from the very beginning. For this purpose For this purpose, the Son of God manifested, the Son of God was manifested. that he might destroy the works of devil. He might destroy the works of the devil. देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश That करे। means he destroyed the works of the devil. इसका मतलब उसने शैतान के कामों को नाश किया। He came. वो आए That's why he manifested. और वो इसीलिए प्रकट हुए That's why Son of God was manifested. और इसलिए परमेश्वर के पुत्र प्रकट हुए That's why Jesus came here और इसलिए यीशु यहाँ पर आए to destroy his works. कि शैतान के कामों को नाश करें। He said, उसने कहा, Father, पिता, I finished the works मैंने अपना काम पूरा किया है which you have given me to do. जो तूने मुझे करने के लिए दिया What is था। that? What ये is क्या that? है? He destroyed the works of the devil. कि उसने शैतान के कामों को नाश किया। If you believe that, अगर आप ये विश्वास करें, if you accept that, अगर आप इसे स्वीकार करें, the devil cannot work तो now. शैतान अभी काम नहीं कर सकता है। Next, अगली बात, the Bible says, बाइबल कहती है, Colossians chapter 2:15. कुलुसियो अध्याय 2 वचन 15, कुलुसियो 2:15। 2:15. Here it says, यहाँ पर ये कहता है, He, having disarmed principalities and powers, having disarmed principalities and powers, he made public spectacle of them, he made a public spectacles of them, triumphing over them in it. triumphing over them in it. Let no one judge you. देखिए यहाँ पर ये वचन कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। It says he disarmed the principalities and powers. ये कहता है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को निहत्ता कर दिया, Disarmed. निहत्ता किया। There is no arm in the hand of the devil now. अब शैतान के हाथ में कोई भी हथियार नहीं रहा है। All the weapons सारे हथियार which he used for war जो युद्ध के लिए वो उपयोग किया करता था to destroy the people, कि लोगों को नाश करे, Jesus Christ, यीशु मसीह, he disarmed, he removed everything. उसने उन सारे हथियारों को He निकाल दिया, disarmed him. उसने उसे निहत्ता कर He दिया। doesn't have any weapon in his hand. अब शत्रु के हाथ में कोई भी हथियार नहीं है। Can you able to believe this? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं? Bible says like that. बाइबल इस तरह कहती है, Jesus did this for him. यीशु ने उसके साथ ऐसा ही किया। Then the Bible says और फिर बाइबल कहती है in Genesis chapter 3:15, उत्पत्ति 3:15 में a seed of a woman will come. कि स्त्री का जो वंश है वो He आएगा। spoke to the serpent उसने सर्प से कहा in the Garden of Eden. अदन की वाटिका में,
He said, उसने कहा a seed of a woman will come. कि स्त्री का वंश आएगा, He will come and crush your head. वो आएगा और तुम्हारे सिर को कुचल देगा। When the fullness of time came, और जब समय पूरा हुआ, the seed of a woman came. स्त्री का वो वंश आया, That is Jesus Christ. जो कि यीशु मसीह है। Seed of a woman, स्त्री का वंश, born of a woman, जो स्त्री से जन्मा है, according to the law. व्यवस्था के अनुसार He came, वो आए, and he, और उसने, the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह ने, he crushed the head of the devil. उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। According to, he said, it's finished. उसने कहा ये पूरा हुआ। He has come here to crush the head of the वो devil. यहाँ शैतान के सिर को कुचलने आए थे। He finished that. उसने वो काम पूरा किया। Bible says, और बाइबल कहती he है finished उसने काम पूरा the किया, work that which you have given me to do. और जो काम तूने मुझे दिया I था have finished. मैंने उसे पूरा किया। I glorified you. पिता, मैंने तुझे महिमा On the दी earth. इस पृथ्वी पर। Do you know this, my beloved? क्या आप इसे जानते हैं मेरे प्रिय लोगों? Can you able to understand this? क्या आप इसे समझ सकते हैं? It must be known. These are all good news. ये सुसमाचार, इसे जानना चाहिए, We should know. आपको जानना है। And the Bible says, और बाइबल कहती है and the Lord Jesus Christ was here on this earth. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। John chapter 12 verse 31 he says, यूहन्ना अध्याय 12 वचन 31 में उसने कहा, he said like that, उसने इस तरह से कहा, नाउ इज द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। now is the judgment of this world. When? 2000 years ago. Okay. नाउ द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी कास्ट आउट। The ruler of the world will be cast out. ये वचन इस तरह कहता है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, यानी अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, Jesus said, यीशु ने कहा, now अब is the judgment of this world. इस संसार का न्याय होगा। The ruler of this world will be judged now. इस संसार का जो सरदार है उसका न्याय किया जाएगा। The time has come. अब ये समय आ चुका है। Jesus said, I have come to judge this ruler of the world. यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि संसार के इस सरदार का न्याय करूं। The Bible tells us बाइबल हमें बताती है, in John chapter 16:11, यूहन्ना 16:11 में it says, ये इस तरह से कहती है, of judgment of judgment. because the ruler of this earth is judged। Ruler of this world is judged. न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। That means the ruler of the world, इसका मतलब संसार का सरदार, the Satan, शैतान, the devil, ये शैतान, has already judged. उसका न्याय हो चुका है। Many people don't know about it. बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, now see, अब देखिए, his works have been destroyed. उसके काम नाश कर दिए गए हैं। The power of death that he himself is destroyed. मृत्यु की जो सामर्थ थी वो तो स्वयं नाश कर दिया गया है, निष्क्रिय किया गया है। He has been disarmed. उसे निहत्ता कर दिया गया है। He has been judged. उसका न्याय किया गया His है। head is crushed. उसका सिर कुचल दिया गया है। These are all done by Jesus ये Christ. सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। It's already done. ये हो चुका है, Already finished. ये पहले ही हो गया है। That's why God says, इसलिए परमेश्वर ने कहा, fear not. डरो मत, Fear not. डर मत, I'm with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, Fear not. डर मत। Why the people are fear of this man, this devil? तो लोग इस शैतान से अभी क्यों डरते हैं? Because they don't know. क्योंकि वो नहीं जानते He's already been judged. कि उसका तो न्याय हो चुका है, He already paralyzed. उसे अपाहिज कर दिया गया है। Jesus already has made him nothing. यीशु ने उसे शून्य बना दिया है। This knowledge people don't have. लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है। Still people believe him. अभी भी लोग विश्वास करते हैं, People are carrying him. लोग उसे लिए चलते हैं, People are honoring him. लोग उसका आदर कर रहे हैं। Why it is? ये क्यों? Ignorance. ये अनजान है, They don't know. वो नहीं जानते हैं, Don't know. वो कुछ नहीं जानते हैं। Now how he is judged? अब उसका न्याय कैसे हुआ है, I tell you. मैं आपको बताऊं, This we must know. ये हमें जानना है। If a person kill one person, अगर कोई मनुष्य एक मनुष्य को मार दे, even if he kill 1,000 people, या चाहे 1000 लोगों को he मारे, is a murderer. तो वो हत्यारा है। 1 or 1,000 or more. चाहे 1 या फिर 1000 से भी ज्यादा लोगों की वो हत्या करे तो भी हत्यारा है। He is considered to be a murderer.
उसे हत्यारे के रूप में माना जाता है। How God has judged him. परमेश्वर ने उसका न्याय कैसे किया? My beloved, मेरे प्यारे लोगों, understand this. इसे समझ लीजिए। God came here as a man, परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए, Jesus Christ. यीशु मसीह में। This Jesus Christ was born by the Holy Spirit. ये यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे। Jesus Christ is the Son of God, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, born of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से जन्मे He हैं। is the only person holy on this earth. केवल वही इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र हैं। This Jesus Christ, यही यीशु मसीह, devil has no connection, no right over him. इसके साथ शैतान का न तो कोई संबंध था, ना ही उसके ऊपर कोई अधिकार था। But he had right over Adam and his generation. लेकिन शैतान का आदम पर और आदम की पीढ़ी पर अधिकार था, Because he can do whatever he wants to क्योंकि do. वो जो चाहे वो कर सकता था, He can do whatever he wants. जो भी चाहे कर सकता था। They were under him. वो उसकी अधीनता में थे। One person, एक मनुष्य, Jesus, यीशु, was not under him. वो उसके अधिकार में नहीं थे। Son of God. परमेश्वर का पुत्र। Always Jesus had fellowship with God. यीशु की परमेश्वर के साथ में संगति थी। He says, उसने कहा, I will do nothing of myself. मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ। Whatever my Father says to do, I do. जो भी मेरे पिता करने के लिए कहते उसे मैं करता Whatever हूँ। my Father do, I see, I do the same. जो भी मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ, मैं भी वही करता हूँ। He was obedient to the Father till the last. वो अंत तक अपने पिता के लिए आज्ञाकारी बने रहें। He was obedient to the God. वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहें। Obedient to God. परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी, Obedience to God the Father. पिता परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी। Christ is completely and totally belongs to God. यीशु मसीह तो पूरी तरह से परमेश्वर के ही हैं। Devil has no right on him. शैतान का उस पर कोई अधिकार नहीं है। That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने He कहा, has nothing in me. शैतान का मुझ में कुछ नहीं He, है, he has nothing in me. उसका मुझ में कुछ भी नहीं He है, has no right in me. उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं That's है। why when Jesus was here on this earth, इसलिए जब यीशु इस पृथ्वी पर the थे, enemy devil used to tremble. तो शत्रु शैतान कांपता था। Whenever he see the demons see Jesus, जब भी दुष्ट आत्माएं यीशु को देखती थी, they cry, वो विनती करती थी, don't torment us. हमें न सता, Before time, don't torment us. समय के पहले हमें न सता। They were afraid of Jesus. वो यीशु से डरते थे। Jesus Christ is totally of God's one. He got no right on Jesus. क्योंकि यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर थे और उसके ऊपर दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं था। And what happened? और फिर क्या हुआ? In such a way it has come, and Jesus was taken to cross. और फिर इस तरह से हुआ कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा। People are gathered together. They arrested Jesus. They brought before Pilate. लोग यीशु के विरुद्ध में आए, उन्होंने यीशु को बंदी बनाया और पिलातुस के सामने लाया And say, और कहा, this person is speaking, he is changing the world upside down. ये जो मनुष्य है ये तो दुनिया में उथल पुथल कर रहा है। He is saying he is a king. ये कहता है कि ये राजा है। They put a false complaint उन्होंने झूठा आरोप लगाया and brought to Pilate, और पिलातुस के पास लाया, governor. गवर्नर के सामने लाया They said this man to be killed. और कहा कि इसे मारना होगा। Pilate inquired. He examined Jesus Christ. और फिर पिलातुस ने यीशु को जांचा He found no fault in him. और उसमें उसने कोई गलती या दोष नहीं पाया। Found no fault in Jesus. उसने यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं पाया। Then what Pilate did? और फिर पिलातुस ने क्या He किया? sent Jesus Christ to the king. पिलातुस ने यीशु मसीह को राजा के पास भेजा। He went them. He sent him to the king Herod. उसे राजा हेरोदेस के पास भेजा। Herod also beaten him and examined Jesus. हेरोदेस ने भी यीशु को मारा और उसे जांचा And he wrote a letter to Pilate. और पिलातुस को पत्र भेजा। I have examined him. मैंने इसे जांचा है, I found no fault in him. मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। There is no fault so that he may put to death. इसमें ऐसा कोई दोष नहीं पाया गया कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। इसे मृत्यु दंड देने के लिए कोई दोष नहीं है। That report came to Pilate. और वो खबर पिलातुस के पास आई। And again his wife comes. और फिर उसकी पत्नी आती है, Pilate wife comes. पिलातुस की पत्नी आती है And comes and say, और आकर कहती है, don't touch this righteous man. इस धर्मी व्यक्ति को नहीं छूना। This man is a righteous ये man. व्यक्ति तो धर्मी व्यक्ति है। I saw it in the dream I trouble. मैंने सपना देखा और उसके कारण मैं व्याकुल हो गई हूँ। Don't do any harm to him. इसका कोई नुकसान नहीं करना। Now see that. अब इसे देखिए, On the examination, उस जांचे जाने पर governor say no fault. गवर्नर ने कहा कोई दोष नहीं है। King could find no fault. राजा भी उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ पाया। The Pilate's wife herself came and gave witness.
that he is a righteous man. पिलातुस की पत्नी ने खुद आकर इस तरह से गवाही दी कि ये धर्मी व्यक्ति है, So he cannot put for crucifixion, kill him. तो वो उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार नहीं सकता था। इसमें कोई गलती नहीं थी, दोष नहीं था, He is a righteous person. वो धर्मी व्यक्ति था। But लेकिन what he did, क्या किया? he wanted to release Jesus. वो यीशु को छोड़ना चाहता था। What he did, तो उसने क्या he किया? found an idea. उसने एक विचार किया। He knew there was a man called Barabbas. वो जानता था बरबस नाम का एक व्यक्ति है, He was there in the jail. वो जेल में था, He was condemned. वो दोषी व्यक्ति था, He was a murderer. वो तो हत्यारा था, He was a thief. वो चोर था, Everybody knows about it. सब उसके बारे में जानते थे। So he brought Barabbas. तो उसने बरब्बास को लाया And then he wanted to take the judgment from the people. और वो लोगों से न्याय करवाना चाहता था। He put both of them. उसने उन दोनों को सामने रखा, One side Jesus, एक तरफ यीशु, one side Barabbas. एक तरफ बरब्बास। And he asked a question. और उसने सवाल पूछा, Question to the people. लोगों से सवाल पूछा, Whom shall I release to you? मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ दूं? You brought Jesus to me. तुम मेरे पास यीशु को लाए, I've examined him. मैंने इसे जांचा है, I found no fault in मैंने him. इसमें कोई दोष नहीं पाया। He is a righteous person. ये तो धर्मी व्यक्ति है, But no fault in him. इसमें कोई दोष नहीं है। But anyhow, here is a person. लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति है Barabbas. बरब्बास, He's a murderer, ये हत्यारा है, a wicked man. ये दुष्ट व्यक्ति है, He's a robber. ये तो डकैत है, ये बुरा व्यक्ति है। In two, whom do you want? I should release. इन दोनों में से तुम्हें कौन चाहिए जिसे मैं छोड़ दूं? Pilate thought पिलातुस ने सोचा, people will ask for Jesus and Barabbas will be killed. लोगों ने सोचा कि लोग यीशु की मांग करेंगे और बरब्बास को मार दिया जाएगा। But what happened there? लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ। All the Pharisees and priests and all together, they instigated people, said, you ask for Barabbas, not for Jesus. सारे फरीसी और जो सारे याजक थे उन्होंने लोगों को उकसाया कि बरब्बास को छोड़ने के लिए कहो और यीशु को न छोड़ो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। इस तरह से कहने के लिए उन लोगों ने लोगों को उत्साहित किया। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, then what happened? और फिर क्या हुआ? It was become so much, all the people want Jesus to be crucified. देखिए इतना ज्यादा कि सब लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। सब लोग चाहते थे कि यीशु क्रूस पे चढ़ाया जाए। Pilate took water और फिर पिलातुस ने पानी लिया and he washed his hand. और उसने अपने हाथ धो दिए And he said, और उसने कहा, I am innocent of the blood of this righteous man. इस धर्मी मनुष्य के लहू से मैं निर्दोष हूँ। You see to it. तुम ही खुद इसे देखो। All the people, सभी लोग, they said, उन्होंने कहा, in one accord, एक साथ कहा let his blood come upon us and our generation. कि इसका लहू हम पर और हमारी पीढ़ी पर हो। इस तरह से उन्होंने चिल्लाकर कहा। That means इसका मतलब all the evil forces, सारी जो दुष्ट की शक्तियां हैं, all the devil and his forces, शैतान और उसकी सारी शक्तियां, they forced Jesus Christ to be crucified. उन्होंने जबरदस्ती करवाई कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसे क्रूस पर लटकाया जाए। Their influence. ये प्रभावित किया। So they took Jesus, तो उन्होंने यीशु को लेकर they crucified him. उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। Who killed Jesus? किसने यीशु को मारा? The devil. शैतान ने। The devil. शैतान ने। In him, the devil has no right on Jesus. यीशु मसीह के ऊपर शैतान का तो कोई भी अधिकार नहीं था। No right. कोई अधिकार नहीं Jesus Christ is Son of God. था। यीशु मसीह परमेश्वर का He पुत्र is the था। obedient God, obedient of God. वो परमेश्वर के आज्ञाकारी थे। He is humble before God. वो परमेश्वर के सामने नम्र He is थे। a beloved of God. वो तो परमेश्वर के अति प्रिय थे। In Jesus, यीशु मसीह में the devil has no right. शैतान का कोई अधिकार नहीं था। What happened now? तो फिर अब क्या हुआ? He crucified. उसने उसे क्रूस पर He is चढ़ाया। the cause of his death. क्रूस पर उसकी मृत्यु के कारण ही Under heaven's judgment, और स्वर्ग के न्याय के कारण now he is proved. अब ये साबित किया गया, This devil, ये शैतान, he killed God's son. उसने परमेश्वर के पुत्र को मार He दिया, proved to be a murderer. उसे हत्यारा साबित किया गया। Now the judgment has come. अब न्याय आ चुका, Already judged. न्याय आ चुका है This devil is a murderer. कि ये शैतान हत्यारा है। Beyond doubt, it is proved. बिना संदेह के ये तो अभी साबित हो चुका है। That's why the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है devil has already judged. कि शैतान का तो न्याय हो चुका है।
He already judged. उसका न्याय हो गया है। My beloved. मेरे प्यारे लोगों, Now only execution is left out. अब उसे केवल दंड देना बाकी है। अब उसे दंडित करना ही बाकी रह गया है। Now he completely judged. उसका न्याय हो चुका है। Now God gave something else to us. परमेश्वर ने अब हमें कुछ दिया है। Those who believe on the Lord Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। Now He gave us अब उसने the authority. हमें अधिकार दिया है। Luke chapter 10:19 says, लूका अध्याय 10 वचन 19 कहता I है, am giving you authority मैं तुम्हें अधिकार देता to हूँ trample on serpent and scorpions. कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदो। I am giving you authority मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, over all the power of the enemy. शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। I am giving you authority मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, over all the power of the enemy. शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ Nothing by any means hurt you. कि किसी तरह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। The authority over the devil, शैतान के ऊपर जो अधिकार है it is given to us. वो हमें दिया गया है। It is given to you. ये आपको दिया गया है। Whatever you say, आप जो भी कहेंगे he has to obey. उसे आज्ञा माननी है। That's what Jesus said. यही यीशु ने You कहा, take my तुम name, मेरा नाम लो, cast him out. तुम उसे निकाल दो। Beloved brother and मेरे sister, प्यारे भाइयों और बहनों, what we are doing, हम क्या कर रहे हैं? what is happening, क्या हो रहा है? do you know क्या that? आप ये जानते हैं? The Bible, God has given us authority over the power of the enemy. परमेश्वर ने हमें शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है। Nothing by any means hurt you. किसी तरह से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। He has given the power of attorney to take his own उसने name. हमें सामर्थ का अधिकार दिया कि उसके नाम का हम उपयोग करें। He has given power of attorney. उसने हमें अधिकार पत्र दे दिया है कि उसका नाम ले, You take my name, कि तुम मेरा नाम लो, cast him out. उसे निकाल दो। What we are doing? हम क्या कर We रहे are हैं? afraid. हम डरे हुए हैं। Don't fear. डरिए नहीं, Don't fear. डरिए नहीं। It's a good news. ये सुसमाचार है, It's a good ये news. शुभ संदेश है। You have to believe the good news. आपको शुभ संदेश पर विश्वास We have करना to go है। and preach to the people the good news. हमें जाकर लोगों को शुभ संदेश प्रचार करना है। Tell the people, लोगों को बताइए fear not. कि डरो नहीं, Take authority अधिकार ले लो। over the power of the enemy. शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार लो। Every sickness is enemy. हर एक बीमारी तो शत्रु है, Every disease is enemy. हर एक रोग तो शत्रु है, हर एक बीमारी शत्रु है, Every failure is enemy. हर एक असफलता तो शत्रु है। Whatever things are happening against you is all enemy. आपके विरुद्ध में जो भी हो रहा है ये सब शत्रु है, ये सब शत्रु का काम है। Who got authority? किसके पास में अधिकार He है? has given authority to us. उसने हमें अधिकार दिया है। That's why God said, इसलिए प्रभु ने कहा, go and preach the good news to all the people. इसलिए जाकर सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, Go and preach the kingdom of God. प्रभु राज्य का प्रचार करो, Gospel of the kingdom. प्रभु राज्य का सुसमाचार। Heal the sick people. बीमारों को चंगाई दो, Cleanse the leper. कोड़ियों को शुद्ध करो, Raise the dead. मुर्दों को जिलाओ, Cast out the devil. दुष्टात्माओं को निकाल God दो। said, cast out the devil. उसने कहा दुष्टात्माओं को Kick निकालो, him out. उसे लात मार के बाहर करो। Freely you have received. तुमने सेत में पाया है, Freely you give. तुम सेत में दो। This is good news. ये शुभ संदेश How है। many people are believing this? कितने लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं? Still they are fearing अभी भी वो डर रहे हैं the devil. शैतान से। He will definitely take over तो you. निश्चय वो आप पर अधिकार करेगा। No need to fear. आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, नहीं डरना है। Believe on the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास कीजिए। Come on, thank Him for the authority God has given to you. परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया उसके लिए उसे धन्यवाद दे। Call upon Heavenly Father. स्वर्गीय पिता परमेश्वर को आप पुकारिए, Say to Him, उससे कहिए, pray. उससे प्रार्थना कीजिए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता thank you. धन्यवाद, Millions of thanks आपको लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद for giving me this authority. मुझे ये अधिकार देने के लिए धन्यवाद, Giving me authority मुझे ये अधिकार देने के लिए धन्यवाद। over the power of the enemy. शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर You have given me authority आपने मुझे अधिकार दिया है to take the name of Jesus. कि यीशु मसीह का नाम ले, Cast the devil out. कि दुष्ट आत्माओं को निकाले, Cast the enemy out. कि शत्रु को भगा दे। Help me, Father, पिता मेरी मदद कीजिए to exercise this कि authority इस अधिकार का मैं उपयोग करूं, freely, मुफ्त में, freely मुफ्त में on this earth. इस पृथ्वी पर। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I give you all glory. मैं आपको सारी महिमा देता हूँ, I glory. सारी महिमा। I am free. मैं अभी आजाद हो चुका हूँ, I am not afraid. मैं डरा नहीं हूँ। I believe Jesus. मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। Jesus, you are in me. यीशु आप मुझ में हैं, You are in my heart. आप मेरे दिल में हैं। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I में pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Amen.